Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So पार्ट वन और पार्ट टू हमने कर लिया है एक्टिव और पैसिव वॉइस का. सो हियर आई हैव ब्रॉट पार्ट थ्री of active passive voice, and that is actually future tense. You can see I have mentioned over here. And in future tense what we'll do simple future tense. So I hope that you all are utilizing your this lockdown time, and if you are not still utilizing your time, start utilizing. So many things are available. Use your time and enhance yourself. Okay, so let us come to the main topic. So simple future tense now we will do. This is the part 3, and one more request to all of you that if you have not seen part 1 and part 2, so please go through those videos too, because all the basic fundamental, सभी basic fundamental मैंने उसमें explain कर दिए हैं. ठीक है, तो मैं आऊँगा अब simple future tense पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव सेंटेंस की हम इसी फॉर्मेट में जा रहे थे, और मैंने जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो है एक्चुअली वो पीपीटी फॉर्म में है. So now I have brought I have arranged board and marker everything. So we'll do on this now. So positive, negative and interrogative. First of all let us see the sentence structure. Okay, तो क्या होता है? तो first of all subject and future tense में helping verb होती will and shall, then verb का first form always remember in future tense, V1, then object, then other word. So what basic change we'll do in positive sentence or passive voice? You all are knowing very well. What we are doing, we are interchanging subject to object. Remember this. Okay, so here object will come, will, shall as it is, and the new thing which is coming in this is be, is be, be, so be, and then V3, then by, then subject. The subject will come here, subject, and then other word. Okay, so this is your positive sentence. ये पॉजिटिव हो गया. अभी नेगेटिव पे आएंगे, अब फिर इंट्रोगेटिव पे आएंगे. तो प्रॉब्लम क्या है? देखो दोस्तों, आपको जो एक्टिव वॉइस आपने पॉजिटिव सेंटेंस का लिखा उसको रेफरेंस बना लो. आप रेफरेंस बना के चलो, उसको कुछ नहीं करना है, इसको रेफरेंस बना लो. नेगेटिव में नॉट ऐड कर देंगे हम सिर्फ. तो व्हाट विल डू, सब्जेक्ट will, shall plus not and V1 plus object plus other word. फाइन. सो जैसे कि यहाँ पर रेफरेंस इसको बनाया, तो पैसिव वॉइस को रेफरेंस बनाओ इसके लिए. सो व्हाट विल डू, सेम ऑब्जेक्ट प्लस will and shall, will use not, then be, then V3, then by plus subject plus other word. Hope you are understanding the things what I am writing on the board. Now in the interrogative सेम इसी को रेफरेंस बनाइए आप. एक्टिव वॉइस के लिए इसको रेफरेंस बना दीजिए. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विल, शैल आगे आ जाएगा. तो will and shall plus remaining is subject plus V1 plus object plus other word plus question mark. इंटरोगेटिव सेंटेंस से तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही, बट ऑब्वियस है. अब आप इसको बना लीजिए रेफरेंस. तो क्या हो जाएगा, विल, शैल पहले आ जाएगा. सो विल, शैल प्लस व्हाट, ऑब्जेक्ट, एंड देन बी, देन B plus V3 plus by plus subject plus other word and plus question mark. तो दोस्तों ये था सेंटेंस स्ट्रक्चर. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन टू टैकल और टू ट्रांसफॉर्म एक्टिव वॉइस to passive voice or passive voice to active voice. We should learn all the transformation and all the sentence structure. That is very important. और आई शुड से ये मैंडेटरी, एकदम ये एकदम मैंडेटरी है. ठीक है, इसके बिना आप आई डोंट थिंक आप टैकल कर पाओगे एक भी लाइन. ठीक है, सो व्हाट विल डू, दिस इज अ सिंपल फ्यूचर टेंस पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर. नाउ विल सी एग्जाम्पल्स, sentence wise example. We'll see one positive sentence, we'll see one negative sentence, we'll see one interrogative sentence. Okay,
ओके, सो नाउ यू कैन सी मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं, स्ट्रक्चर ऊपर रखे हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, सो विल फॉलो, यू कैन सी पॉजिटिव सेंटेंस में लिखा हुआ है, नेगेटिव लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो देखिए कि पहले सब्जेक्ट, एक्टिव सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट दिया होगा कि दिस इज योर आवर सब्जेक्ट, एंड देन विल शेल इट इज़ गिवन, एंड देन ऑल्टर माई शर्ट टुमारो। ठीक है, द टेलर विल ऑल्टर माई शर्ट टुमारो। ठीक है, तो इसमें आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्या है ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए हमेशा वर्ब के बाद, मोस्टली नॉट ऑल द टाइम बट मोर ओफन यू विल सी, आपको मिलेगा वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, माई शर्ट, वॉट माई शर्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा जैसा कि लिखा हुआ है देखो, तो माई शर्ट, क्या माई शर्ट। उसके बाद क्या लगाना है, विल या शैल, तो बट अब वैसे मोस्टली सभी चीज़ों के साथ विल लग जाता है। ठीक है, तो माई शर्ट विल, माई शर्ट विल। उसके बाद क्या यूज़ करना है, बी, तो बी यूज़ कर लिया, माई शर्ट विल बी, मीन वी का थर्ड फॉर्म, क्या वी का थर्ड फॉर्म। तो ऑल्टर, ऑल्टर का थर्ड फॉर्म हम क्या लिखेंगे, ऑल्टर्ड, क्या लिखेंगे ऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड। तो क्या हो गया, माई शर्ट विल बी ऑल्टर्ड, देन व्हाट इज रिमेनिंग, यहाँ पे अब आएगा बाय, क्या आएगा बाय, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो था द टेलर है, तो बाय द टेलर को, यहाँ पे जो टुमारो दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा अदर वर्ड, क्या हो जाएगा अदर वर्ड, तो आप इसको लास्ट में लिख दोगे। तो माई शर्ट विल बी ऑल्टर्ड बाय द टेलर टुमारो। ओके, होप यू आर गेटिंग। मैंने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ किया। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से आता है तो ये बहुत इजी है आपके लिए। ठीक है, सो दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, सो दैट प्लीज़ लर्न द सेंटेंस स्ट्रक्चर, द फॉर्मेशन। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे एक नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन। ठीक है, तो सी विल नॉट अलाउ हर मेड टू क्लीन हर रूम इन हर एब्सेंस। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट आ गया, नॉट है, V1 ये रहा। वर्ब के बाद आपको देखना है मोस्टली टाइम को क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा वर्ब के बाद। ठीक है, हर मेड, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हर मेड है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए हर मेड, क्या हर मेड आपका ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद विल शैल, तो विल, हर मेड विल, देन व्हाट यू टू राइट, नॉट, व्हाट नॉट, her maid will not, then be, then third form, what third form of verb, what is verb here, verb is allow, so allowed. Okay, her maid will not be allowed, her maid will not be allowed, then what will use, by, and after by subject, what is subject here, see, and see का conversion क्या होता है, her, by her और टू क्लीन हर रूम इन हर एब्सेंस। ये देख रहे हो, अगर आप ये देखोगे तो ये सारा अदर वर्ड है, क्या है ये सारा, टू क्लीन हर रूम इन हर एब्सेंस, ये सारा अदर वर्ड है। तो लास्ट में लिख दो हर मेड विल नॉट बी अलाउड बाय हर टू क्लीन हर रूम, टू क्लीन हर रूम इन her absence. ओके, सो ये मैंने आपको बताया पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल। ठीक है, और उसके कन्वर्जन एक्टिव टू पैसिव ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो दिस इज नाउ इंट्रोगेटिव एग्जांपल, आपके सामने दिख रहा होगा आपको। मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर इसलिए लिखा था कि आपको कन्वर्जन करते समय हेल्प हो, लगे कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो विल ही प्रिपेयर प्रोजेक्ट, आप देखो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैंने ऊपर लिखा है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, विल ही प्रिपेयर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो पहले क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर। तो देखो मैंने बोला है कि वर्ब के बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, और लेकिन ऑब्जेक्ट के पहले भी विल से लगाना है, तो प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट के पहले विल आ जाएगा। ठीक है, तो विल, देन प्रोजेक्ट, विल प्रोजेक्ट,
उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट तो हो गया आपका, फिर बी लिखना है आपको, तो लिख दीजिए बी। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब क्या मैंने बोला, वर्ब के बाजू में आपको ऑब्जेक्ट दिखता है, मीन्स वर्ब क्या हो जाएगा, प्रिपेयर। तो विल प्रोजेक्ट बी प्रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगा इसका प्रिपेयर्ड। उसके बाद क्या लिखना है आपको, बाय लिखना है, बाय लिख दिया आपने। ही का क्या होता है कन्वर्जन, हिम होता है, तो बाय हिम और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब एक इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको दिख रहा होगा मैंने लिया है, ठीक है। व्हाट विल डू इन दिस, सो लेट अस फाइंड आउट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या बोला, वर्ब के बाजू में ही हमेशा आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करने की, तो ये आपका एनीबडी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो एनीबडी ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन उसके पहले विल सेल लगाना है आपको, ऑब्जेक्ट के पहले विल सेल। तो मैंने बोला कि मोस्टली विल लगाना है आपको, तो विल एनीबडी, विल एनीबडी। इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि नॉट आपका एनीबडी के बाद ही आएगा, क्योंकि सेंटेंस जो होता है उसकी मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। विल एनीबडी नॉट, और आपको पता है बी के पहले ही हम नॉट लगाते हैं, बी के पहले ही हम नॉट लगाते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद बी है, तो ऑब्जेक्ट के बाद बी आएगा यहाँ पे, तो बी के पहले ही नोट आना चाहिए। विल एनीबडी नॉट बी, एब्यूज मतलब पता है गाली देना, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा एब्यूज्ड, क्योंकि वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाना है हमें अब, तो abused. Then what we have to write, by, then subject. What is subject here, he, तो कन्वर्जन में क्या हो जाएगा, him and then question mark। So this was the example of interrogative sentence, okay, hope you are understanding। तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस लिया, नेगेटिव लिया, इंटरोगेटिव लिया, और उसके बाद हमने तीनों के एग्जाम्पल भी देखे, ठीक है। आई होप आइडिया इज़ क्लियर एंड यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली। सो अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका लास्ट टेंस। सो ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर ऑन द लास्ट टेंस। लास्ट तो कभी कुछ होता ही नहीं, बट जो बेसिक फंडामेंटल है उसका ये लास्ट फॉर्मेशन है, ठीक है। फिर कुछ मिसलेनियस भी देखेंगे हम, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, पार्ट 3 का। सो पहले तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल, ठीक है। फिर इसमें आ जाएगा हैव, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव, एंड V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो मैंने बताया ये पैसिव वॉइस में पहले क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट के प्लस लिख दो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट एंड देन व्हाट, विल सेल प्लस हैव एज इट इज़। जो इसमें ऐड होगा वो है दोस्तों बीन, BEEN बीन, ओके। एंड देन आपको पता ही है V3। इसमें सबसे अच्छी बात तो ये दोस्तों कि आपको वर्ब का फॉर्म ना भी याद हो तो भी आपको वही लिख देना होता है, ठीक है। इसमें चेंज नहीं करना होता वर्ब में, ओके। एंड देन व्हाट वी राइट, बाय एंड सब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड। सो ये था सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैंने नीचे एक एग्जांपल ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया, मैं फिर से रीड कर रहा हूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिएगा। क्या, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, एंड देन सब्जेक्ट के प्लस पे ऑब्जेक्ट एंड विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब मैं आपको एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए, तो मैंने जैसा कि बोला था कि वर्ब के बाजू में ही आपको क्या मिल जाएगा, अदर वर्ड मिल जाएगा 99% केसेस में, ठीक है। तो व्हाट वी विल राइट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ही इज होमवर्क, सो he is homework, what, he is homework, and then will or shall, then we write will have written now been। अब हमें been लिखना है तो been लिख दीजिए, और V3 लिखना है तो finished वर्ब है ऑलरेडी तो उसको as it is लिख दीजिए, finished, ओके। what his homework will have been finished। अब कौन फिनिश करेगा, आर्यन फिनिश करेगा, तो V3 के बाद बाय लिखना है आपको, तो आपने बाय लिख दिया। देन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा ये, और दिस इज ऑब्जेक्ट, इसलिए हमने इसे आगे लिया है। फिनिश्ड बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज व्हाट, आर्यन। तो नाम कभी चेंज नहीं होता, फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया है, बाय आर्यन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसका एग्जाम्पल हमने बता दिया, ठीक है। नाउ विल सी नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव है उसको रेफरेंस आप ले लो, ठीक है। होप आपने रेफरेंस ले लिया होगा। अब मैं इसे चेंज करता हूँ, तो व्हाट विल डू, सब्जेक्ट प्लस विल
शैल प्लस, अभी यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ नॉट आ जाए, अब नॉट आ जाएगा, नॉट प्लस हैव, नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, क्या लिखा मैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये तो क्या हुआ, एक्टिव वर्ड्स का स्ट्रक्चर हुआ। इसको रेफरेंस लेके आप चलिए आगे, बाकी कुछ करना है नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल, व्हाट, विल शैल प्लस आपको यूज़ करना है नॉट, फिर आपको यूज़ करना है हैव, फिर जो नया इंट्रोड्यूस करना है बीन। ओके, देन आपको यूज़ करना है व्हाट, V3, देन आपको बाय, एंड बाय के बाद सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ठीक है, तो आपके सामने मैंने एक्टिव से पैसिव का स्ट्रक्चर लिखा। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट होगा, फिर बाकी सेम हो जाता है और कुछ करना होता नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हैव के बाद नॉट ना लिखें, हैव के पहले हमेशा विल शैल के बाद ही आपको नॉट यूज़ करना होता है। सो व्हाट इज़ नाउ, लेट अस चेंज, लेट अस सी सम एग्जांपल। ओके, वन एग्जांपल आई हैव रिटन ओवर हियर। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के बाजू में आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मेडिसिन ले लीजिए आप, तो मेडिसिन्स, व्हाट, मेडिसिन्स, ऑब्जेक्ट होगा विल शैल, तो विल, मेडिसिन्स विल, देन नॉट, then not have and been, what, medicine will not have been, then V3 is taken, then by, after V3 what will write, by, and what is subject here, C का कन्वर्जन क्या होता है, her, by her। तो ये था दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसके एग्जांपल। अब हम लास्ट फॉर्मेशन, लास्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज़ इंटरोगेटिव। मैं उसके आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा और उसके एक या दो एग्जांपल भी बताऊंगा। ओके दोस्तों, सो आ गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, आखिरी। ठीक है, पार्ट 3 का। आइए, सो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, तो इट विल विल एंड शैल प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, एंड देन आपका हो जाएगा हैव, V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या चेंजेस आता है देख लीजिए। ठीक है, बेसिक चेंजेस तो आएंगे ही, विल शैल प्लस सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट, एंड देन हैव प्लस बीन, मैंने बोला बीन लगता है। ठीक है, देन V3 प्लस V3 के बाद आपका आ जाएगा बाय, और यहाँ पे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे, देन अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो ये था सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं एक एग्जांपल इसी के उसी बेसिस पे। सो सी, विल ही हैव परचेज्ड मोबाइल, मैंने बोला है कि वर्ब के साइड में ही आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाता है मोर ओवर केसेस में। ठीक है, तो मोबाइल को आप ले लेंगे एज अ ऑब्जेक्ट के प्लेस पे और विल यूज़ करेंगे उसके साथ, विल मोबाइल। उसके बाद क्या यूज़ करना है, हैव, व्हाट, हैव, देन यूज़ करना है बीन, हैव बीन, देन थर्ड फॉर्म परचेज्ड है तो एज इट इज़ लिख दो आप, परचेज्ड बाय, क्योंकि बाय आएगा फिर, और यहाँ पे कौन है, ही है तो हिम हो जाएगा उसका, बाय हिम। यहाँ कोई अदर वर्ड है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना पार्ट 3 का वीडियो। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, एंड वी हैव completed part 1, part 2, part 3 एंड टेंसेस एंड बेसिक रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एंड मैं इसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगा आज, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लिस्ट, लॉकडाउन थोड़ा सा ओपन हो गया है, प्रिकॉशनरी चीज़ें आप कैरी करिए। ठीक है, और स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।